Yes, this is my title slide. Yes, title slide visible, Harish, right? थैंक यू. व्हाट अबाउट वॉइस? वॉइस ठीक है, आ रहा है ठीक से? ओके, नाउ यू कैन स्विच ऑफ योर माइक. आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 8. बीच में कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताना, ठीक है? लेक्चर नंबर 8 मैं स्टार्ट करूंगा. ओके, सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 8, क्लासिकल मैकेनिक्स, और ये लास्ट लेक्चर है. आज के दिन हम यूनिट नंबर 2 फिनिश करेंगे एंड टुडेज डेट इज 5 जनवरी 2022. ओके, सो टिल नाउ we have seen some problems related to the compound pendulum और एट्यूड मशीन का जो भी प्रॉब्लम है वो मैंने शेयर कर दिया था गूगल क्लासरूम में. उसका वीडियो भी, रिकॉर्डेड वीडियो शेयर किया है. और आज भी हम एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं कि व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर और सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ टू फाइंड आउट द लैग्रेंजियन ऑफ दैट फॉर दैट पार्टिकल. और लैग्रेंजियन फंक्शन कैसे फाइंड आउट करना है. अगर कोई भी बोलेगा कि लैग्रेंजियन फंक्शन फाइंड आउट करना है, so to find out the Lagrangian function, we should know about the kinetic and potential energy, because Lagrangian function means L and L means T minus V. So we should know about the kinetic energy for that particle and potential energy, then we can easily find out the Lagrangian function. So the problem is the Lagrangian function for a particle on the surface of sphere. When the particle is moving on the surface of sphere or earth, how to find out the Lagrangian function, that we will see today. Okay, so Lagrangian function can be set up for a particle moving on a surface of sphere by using some spherical polar coordinates. So we have to use spherical polar coordinates to find out the Lagrangian function. So what is spherical polar coordinates? Polar coordinates तुमने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में. ओके, देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड. पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अगर मान लो एक पोजीशन वेक्टर ले लिया और थीटा ले लिया, थीटा और एंगल लिया, दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट्स. आर एंड थीटा, दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट्स. यू माइट हैव स्टडीड इन योर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ड्यूरिंग मैथमेटिक्स. Okay, in the subject mathematics, what are polar coordinates? Polar coordinates are r and theta, position vector and particular angle, that is called polar coordinates. Okay, Cartesian coordinates तुमको पता है, x, y, z, they are Cartesian coordinates. Polar coordinates r and theta, and spherical polar coordinates means r और theta भी आएगा और एक angle आएगा, that is called phi. r, theta, phi, these are the spherical polar coordinates. So using spherical polar coordinates means using r, theta, phi, we can set up the Lagrangian for the particle moving on the surface of sphere. So there is certain relation between polar coordinates and Cartesian coordinates. There is a certain relation between spherical polar coordinates and Cartesian coordinates. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मींस कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं. कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आर और थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स. और आर और थीटा और एक एंगल ले लेंगे फाई, तो आर थीटा फाई से जो रिलेटेड करेंगे उसको बोलेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स. ओके, तो ये रिलेशन होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ रिलेशन होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का के साथ रिलेशन होता है. वो रिलेशन डिराइव करने के लिए बहुत बड़ा डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन के अंदर हम नहीं जाएंगे, बिकॉज आवर मोटो इज टू फाइंड आउट द लैग्रेंजियन फंक्शन. So we will have to remember what are spherical polar coordinates and their relation between the spherical polar coordinates and Cartesian coordinates. You know that r theta phi, अभी मैंने बोला r theta phi are the polar spherical polar coordinates. Suppose this r theta phi be the spherical polar coordinates of the particle moving on Earth or spherical surface taking center of the sphere. So Earth का एक सेंटर होता है और अर्थ के सेंटर को और स्फीयर के सेंटर को ओरिजिन कंसीडर करके हम ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे. स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कहां से कंसीडर करेंगे, अर्थ के सेंटर को हम ओरिजिन मानेंगे और उस ओरिजिन से पर्टिकुलर पार्टिकल की पोजीशन क्या है, आर थीटा फाई, उसका पोजीशन वेक्टर आर है, एंगल थीटा और फाई है. ओके, सो हम उस पार्टिकल की पोजीशन कहां से मेजर करते हैं, सेंटर ऑफ स्फीयर से, सेंटर ऑफ अर्थ से. तो हमने कंसीडर क्या किया है, वी विल हैव टू कंसीडर आर थीटा फाई बी द पोलर कोऑर्डिनेट्स, बी द स्फेरिकल पोलर coordinates. Okay, so there is relation between spherical polar coordinates and Cartesian coordinates. So Cartesian coordinates क्या होता है, x y z.
So there is a relation, there is the transformation of Cartesian coordinate system to the spherical polar coordinate is given by the following equation. So देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का एक्स वाई जेड का रिलेशन होता है आर थीटा फाई के साथ. आर थीटा फाई क्या है? व्हाट आर आर थीटा फाई? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स. एंड व्हाट इज एक्स वाई जेड? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. सो एक्स वाई जेड का रिलेशन आर थीटा फाई के साथ होता है. वो रिलेशन डिराइव करने का बहुत बड़ा डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन हम कंसीडर नहीं करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. मैं डायरेक्ट बताऊंगा एक्स वाई जेड का रिलेशन आर थीटा फाई के साथ कैसा है और क्या होता है. ओके, सो हम तीन इक्वेशन देखेंगे. एक्स का रिलेशन आर थीटा फाई के साथ, वाई का रिलेशन आर थीटा फाई के साथ, जेड का रिलेशन आर थीटा फाई के साथ. तो ये तीन इक्वेशन देखेंगे हम. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब याद रखना है एक्स वाई जेड मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आर थीटा फाई मतलब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, और पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब सिर्फ आर थीटा. स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स बोला तो आर थीटा के साथ फाई भी आएगा. ओके, सो वी विल हैव टू रिमेंबर अ रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट. तो क्या होगा रिलेशन? एक्स का रिलेशन आर थीटा फाई के साथ क्या होगा? y का रिलेशन आर थीटा फाई के साथ क्या होगा? z का रिलेशन आर थीटा फाई के साथ क्या होगा? ये हम चीज देखेंगे. ओके, तो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस द रिलेशन बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू अ स्फेरिकल. मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर मुझे पता है तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में कैसे लिखते हैं उसी को क्या बोलेंगे? द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट. उसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट to spherical polar coordinates is given by these three equation. So you have to remember these three equation, very important equation. x का रिलेशन r थीटा फाई के साथ कैसे होता है? x is equal to r sin theta cos phi. This is the first equation. y का रिलेशन r sin theta sin phi. z का रिलेशन r cos theta. ये तीन इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के रिलेशन में, ये तीन इक्वेशन तुमको याद रखना है. अगर ये तीन इक्वेशन तुमको याद है या फिर ये तीन इक्वेशन तुमको पता है, रिमेंबर है, तो तुम लैग्रेंजियन फंक्शन देन यू विल इजीली फाइंड आउट द लैग्रेंजियन फंक्शन फॉर द पार्टिकल मूविंग ऑन सरफेस ऑफ द स्फीयर और सरफेस ऑफ दिस अर्थ. ओके, व्हाई you need spherical polar coordinates here? Because you know that the surface of earth is sphere and we have to find out the Lagrangian for the particle moving on the surface of sphere. Okay, तो पार्टिकल अगर सरफेस ऑफ स्फीयर पे मूव हो रहा है, अर्थ पे मूव हुआ, तो हमको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए. इसलिए एक्स वाई जेड का अगर पार्टिकल एक्स में मूव हो रहा है, अगर पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो उसका क्या होगा रिलेशन? एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई. अगर पार्टिकल वाई डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो आर साइन थीटा साइन फाई. अगर पार्टिकल जेड डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो आर कॉस थीटा. तो ये तीन इक्वेशन तुमको पता होना चाहिए. ओके, अब तुम बोलोगे मुझे एक्स वाई जेड क्यों पता होना चाहिए? Why we have written the equation in x y z? Why we need to know x y z? Why? Because अगर तुमको x y z पता है, x मतलब क्या डिटरमाइन करता है? पोजीशन इन x डायरेक्शन. y क्या डिटरमाइन करता है? पोजीशन इन y डायरेक्शन. z क्या डिटरमाइन करता है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन z डायरेक्शन. अगर पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन x डायरेक्शन पता है, y डायरेक्शन पता है, तो z डायरेक्शन पता है, तो तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो. क्योंकि क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब वेलोसिटी. अगर तुमको वेलोसिटी निकालना है एक्स डायरेक्शन में तो इसका डेरिवेटिव ले लोगे फर्स्ट इक्वेशन का. अगर तुमको वेलोसिटी निकालना है वाई डायरेक्शन में तो डेरिवेटिव ले लोगे इक्वेशन नंबर सेकंड का. अगर वेलोसिटी निकालना है जेड डायरेक्शन में तो डेरिवेटिव ले लोगे. क्योंकि ये क्या है? पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन. एक्स क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और आर थीटा फाई है पोलर कोऑर्डिनेट. इन दोनों का रिलेशन एक्स डायरेक्शन की पोजीशन कैसे डिटरमाइन करेंगे? आर साइन थीटा कॉस फाई. वाई डायरेक्शन में पार्टिकल की पोजीशन आर साइन थीटा साइन फाई. जेड डायरेक्शन में पार्टिकल की पोजीशन आर कॉस थीटा. तो ये तीन डायरेक्शन में पार्टिकल की पोजीशन है और ये तीनों डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी निकालना है तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लो dx by dt. तो क्या निकलेगा? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मतलब vx, dy by dt वेलोसिटी इन y डायरेक्शन vy, dz by dt वेलोसिटी इन z डायरेक्शन. और तीनों को प्लस कर दो तो हमको टोटल वेलोसिटी मिल जाएगी. बिकॉज टोटल वेलोसिटी इज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर. मतलब x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर. x डॉट मतलब वेलोसिटी dx by dt, y डॉट मतलब वेलोसिटी dy by dt, z डॉट मतलब वेलोसिटी dz by dt एंड z डायरेक्शन.
और तीनों को प्लस कर दो तो तुमको वेलोसिटी मिलेगी, और अगर वेलोसिटी मिली तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और काइनेटिक एनर्जी मिली तो तुम लैग्रेंजियन फंक्शन निकाल सकते हो। लैग्रेंजियन फंक्शन क्या है? L इज इक्वल टू टी माइनस वी। टी चाहिए तुमको, टी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो वेलोसिटी चाहिए। अगर वेलोसिटी निकालना है तो पोजीशन पता होना चाहिए, तो पोजीशन मुझे पता है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लो और उसको प्लस कर दो तो मिल जाएगा टोटल वेलोसिटी। अगर टोटल वेलोसिटी मिल गई तो तुम इजीली काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। तीनों डायरेक्शन की वेलोसिटी को प्लस कर दो तो वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी मिली तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिली तो लैग्रेंजियन फंक्शन इजीली निकाल सकते हो। तो वेरी इजी। If you know these three equations, then you can easily find out the Lagrangian function for the particle moving on surface of sphere. Okay, तो ये तीन इक्वेशन तुमको याद रखना है। Okay, तो ये तीन इक्वेशन क्या बोलते हैं कि रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। x इज इक्वल टू r sin थीटा cos phi। देखो याद रखने का तरीका क्या है, सब में r है, ये याद रखो। एक में क्या है, पहला में साइन कॉस, साइन साइन, और आखिरी में सिर्फ कॉस। तो साइन कॉस मतलब साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई एंड कॉस थीटा। तो इस तरीके से तुमको साइन कॉस साइन साइन कॉस ऐसे याद रखना है, साइन कॉस साइन साइन कॉस। तो तीन इक्वेशन, और आर कॉमन है, आर मतलब पोजीशन वेक्टर कॉमन है सब में। तो एक्स इज इक्वल टू आर साइन, और थीटा फाई का जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा, पहले थीटा फिर फाई, फिर थीटा फिर फाई, फिर थीटा, अगर सिर्फ कॉस है तो। सो इस तरीके से याद रखना है, साइन कॉस साइन साइन एंड कॉस, देन थीटा फाई थीटा, इस तरीके से। तो x is equal to r sin theta cos phi, y is equal to r sin theta sin phi, and z is equal to r cos theta. This is the relation between the Cartesian coordinate and spherical polar coordinate, and this x represent the position of particle in x direction, y represent the position of particle in y direction, z represent the position of particle in z direction। अगर वेलोसिटी निकालना है तो तीनों का क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब डेरिवेटिव कैसे लेंगे? डेरिवेटिव जितना इजी दिख रहा है उतना है नहीं। अगर मुझे x का डेरिवेटिव, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, सो ये क्या हो जाएगा, dx बाई dt। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? देखो r को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। क्यों? r रेडियस ऑफ अर्थ चेंज होती क्या? कभी नहीं। अगर स्फेयर है, स्पेरिकल शेप है, तो रेडियस ऑफ स्फेयर चेंज होती क्या? नहीं। तो रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो रेडियस वेक्टर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो r को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो अब डेरिवेटिव कौन से लेंगे? ये दोनों का डेरिवेटिव लेंगे। अब ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या है, सेकंड फंक्शन। तो तुमको पता है डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल क्या होता है। पहले क्या करते हो, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हो और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड को एज इट इज रखते हो और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। r कांस्टेंट है, r इज द कांस्टेंट। ओके, r कांस्टेंट है तो r से कोई लेना देना नहीं है, r का डेरिवेटिव नहीं लेंगे हम, r कांस्टेंट है। तो डेरिवेटिव किसका लेंगे? साइन थीटा और कॉस फाई का। तो ये साइन थीटा भी वेरिएबल है और कॉस ये फाई भी वेरिएबल है। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। सो पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो कॉस फाई का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू टी? कॉस फाई का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन फाई, और फाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी फाई बाई डी टी प्लस फिर क्या करेंगे, cos फाई को एज इट इज रखेंगे और sin थीटा का डेरिवेटिव रहेंगे। sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? cos थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t d थीटा बाय dt। तो इस तरीके से प्रोडक्ट रूल लगा के हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, प्रोडक्ट रूल लगा के। उसी तरीके से सेकंड भी और थर्ड में प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ cos थीटा है, r कांस्टेंट। cos थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होता है? माइनस साइन थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू d थीटा बाय dt। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव निकाल। अब देखो ये तीनों इक्वेशन का डेरिवेटिव इसलिए निकालना है क्योंकि मुझे वेलोसिटी निकालना है। ये क्या है? पोजीशन इन x डायरेक्शन। ये क्या है? पोजीशन इन y डायरेक्शन। ये क्या है? पोजीशन इन z डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएट करो, dx बाय dt क्या होता है? वेलोसिटी। dy बाय dt क्या होता है? वेलोसिटी। dz बाय dt क्या होता है? वेलोसिटी इन z डायरेक्शन। तो ये वेलोसिटी निकालना है तो मुझे तीनों इक्वेशन को 1 बाय 1 डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा। तो डिफरेंशिएट फर्स्ट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या आएगा? देखो वेरी इजी, r कांस्टेंट है। पहले साइन थीटा को एज इट इज रखूंगा, cos फाई का डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस साइन फाई आएगा, और फाई का डेरिवेटिव डी फाई बाय डी टी। फिर क्या करूंगा? cos फाई को कांस्टेंट रखूंगा और साइन थीटा का डेरिवेटिव करूंगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा,
और थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है, डी थीटा बाय डी टी। तो इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन को मैंने डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएट फर्स्ट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या होता है dx बाय dt। अब r को कांस्टेंट रखा हो, cos फाई सपोज सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन cos फाई सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रखा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, पहले फर्स्ट फंक्शन का लो या सेकंड फंक्शन का, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो r कांस्टेंट है, cos फाई को कांस्टेंट रखा और cos फाई को कांस्टेंट रखा और sin थीटा का डेरिवेटिव, sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है cos थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t d थीटा बाय dt माइनस, अब माइनस क्यों आया मैं बताऊंगा, r कांस्टेंट रखा, ठीक है, r कांस्टेंट रखा और क्या किया sin थीटा को कांस्टेंट रखा, और cos फाई का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin फाई, इसलिए यहां पे माइनस आया, और फाई का डेरिवेटिव डी फाई बाय डी टी। वेरी इजी, इस तरीके से डिफरेंशिएशन निकलेगा x का विथ रिस्पेक्ट टू t। फिर से मैं बताऊंगा, देखो यहां पे x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, आर को कांस्टेंट रखूंगा, आर को कांस्टेंट रखा, अब साइन थीटा ये है फर्स्ट फंक्शन और कॉस फाई सेकंड फंक्शन, साइन थीटा को कांस्टेंट रखो, कॉस फाई का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन फाई, और फाई का डी फाई बाय डी टी, तो माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। पहले फर्स्ट फंक्शन का लो या सेकंड फंक्शन का लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट रूल है। ओके, पहले क्या करो, आर कांस्टेंट है, साइन थीटा कांस्टेंट रखो और कॉस फाई का डेरिवेटिव लो, कॉस फाई का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन फाई, और फाई का डेरिवेटिव डी फाई बाय डी टी, ये हो गया। फिर प्लस, फिर कॉस फाई को कांस्टेंट रखो और साइन थीटा का डेरिवेटिव लो, आर तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाय डी थी। तो इस तरीके से डेरिवेटिव लेने के बाद हमको ये चीज मिलेगी dx बाय डी टी इज इक्वल टू आर कॉस फाई। इसमें मैंने सेकंड फंक्शन पहले कांस्टेंट रखा और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। सेकंड फंक्शन क्या है कॉस फाई, देखो यहाँ पे सेकंड फंक्शन क्या है, फिर से मैं बताऊंगा, सेकंड फंक्शन है कॉस फाई और फर्स्ट फंक्शन है साइन थीटा, आर तो कांस्टेंट है, तो क्या किया मैंने पहले सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रखा, आर तो कांस्टेंट है, सेकंड फंक्शन क्या है cos फाई, फाई को कांस्टेंट रखा और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। फर्स्ट फंक्शन क्या था sin थीटा, sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है cos थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t d थीटा बाय dt। ओके, फिर क्या किया दूसरे इसमें r को कांस्टेंट है और फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रखा, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट क्या है sin थीटा, सेकंड फंक्शन क्या था cos फाई का डेरिवेटिव लिया, cos फाई का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin फाई, तो माइनस आया यहाँ पे, और फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t d फाई बाय dt। तो दो बार प्रोडक्ट रूल लगा के डेरिवेटिव ले लिया मैंने, तो इस तरीके से आएगा। और dx बाय dt क्या होता है x डॉट, dx बाय dt को मैं क्या लिख सकता हूं x डॉट, d थीटा बाय dt को क्या लिख सकता हूं थीटा डॉट, और d फाई बाय dt को क्या लिख सकता हूं फाई डॉट, बिकॉज डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आई कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ डॉट, वेरी इजी। सो ये dx बाय dt को क्या लिखा x डॉट, यहाँ पे क्या है r cos फाई cos थीटा, d थीटा बाय dt को मैंने लिखा थीटा डॉट, माइनस r है साइन थीटा साइन फाई, डी फाई बाय डी टी को मैंने फाई डॉट लिखा, इस तरीके से। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, वेरी इजी। वो 3 इक्वेशन थे, ये इक्वेशन नंबर 4 है। कुछ नहीं किया, डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू टी, वहां पे 2 फंक्शन थे इसलिए प्रोडक्ट रूल लगाया और इस तरीके से डेरिवेटिव आया। ये डेरिवेटिव तुमने मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, कुछ ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे मिल गया वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डॉट मतलब वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली वी विल फाइंड आउट द वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। सो डिफरेंशिएट, देखो इसमें मैंने r कांस्टेंट क्यों रखा, ये यहां पे रीजन दिया है। Since r is a constant as the particle is moving on the surface of sphere, the time derivative of r is 0। r कांस्टेंट है क्यों, क्योंकि r रेडियस कांस्टेंट होता है मूव सरफेस का, सरफेस ऑफ स्फीयर का, इसलिए r को मैं डिफरेंशिएट नहीं करूंगा। टाइम डेरिवेटिव ऑफ r 0 होता है, इसलिए r को डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, r को मैंने कांस्टेंट रखा है। ओके, ये इसका रीजन है कि r कांस्टेंट क्यों रखा है मैंने। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 4 और मुझे मिल गया वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, x डॉट। Now I have to find out the velocity in y direction similarly, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करो। देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, यह है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करो, r तो कांस्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन क्या है sin थीटा, सेकंड फंक्शन क्या है sin फाई यहां पे। ओके, पहले sin थीटा को कांस्टेंट रखो और sin फाई का डेरिवेटिव लो। sin फाई का डेरिवेटिव क्या होता है cos फाई, और फाई का डेरिवेटिव d फाई बाय dt प्लस, फिर क्या करो फर्स्ट फंक्शन को सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रखो sin फाई को, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है cos थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव d थीटा बाय dt, वेरी सिंपल। तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रखो, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लो, प्लस सेकंड फंक्शन कांस्टेंट रखो, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लो, r तो कांस्टेंट है। ओके, सो नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रखा,
साइन फाई, ठीक है, dy बाय dt इज इक्वल टू, ये फर्स्ट फंक्शन लो या सेकंड फंक्शन लो, तुम पे डिपेंड करता है पहले फर्स्ट फंक्शन ले रहे या सेकंड फंक्शन। यहाँ पे मैं, वहां पे मैंने पहले सेकंड फंक्शन लिया है और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फिर फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। जो तुमको करना है, पहले फर्स्ट फंक्शन लो या पहले सेकंड फंक्शन लो एज इट इज, क्योंकि बीच में प्लस साइन होता है तो प्रोडक्ट रूल में कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो पहले सेकंड फंक्शन कांस्टेंट रखो, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लो, प्लस फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रखो, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लो। ये तुमको डिपेंड करता है कि तुम पहले फर्स्ट फंक्शन ले रहे हो या सेकंड फंक्शन ले रहे हो। ओके, सो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई। तो इसमें उसमें मैंने क्या किया, साइन फाई को पहले कांस्टेंट रखा और साइन थीटा का डेरिवेटिव लिया। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी। फिर क्या किया, साइन थीटा को कांस्टेंट रखा और साइन फाई का डेरिवेटिव लिया। साइन फाई का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस फाई, और फाई का डी फाई बाय डी टी। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा, देखो dy बाय डी टी लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू आर, सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रखा साइन फाई को, और साइन थीटा का डेरिवेटिव लिया। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाय डी टी, प्लस आर तो कांस्टेंट है। फिर फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखा साइन थीटा को, और साइन फाई का डेरिवेटिव लिया। साइन फाई का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस फाई और डी फाई बाय डी टी। वेरी सिंपल, प्रोडक्ट रूल लगाया, जैसे यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाया वैसे यहां पे प्रोडक्ट रूल। यहां माइनस इसलिए आया क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और यहां पे सिर्फ साइन के डेरिवेटिव्स लिया तो कॉस, साइन का डेरिवेटिव सिंपल कॉस होता है, माइनस नहीं आता, इसलिए यहां पे प्लस आया। ओके, सो ये डिफरेंशिएशन ले लिया इक्वेशन नंबर 2 का विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो इस तरीके से आया, dy बाय डी टी इज इक्वल टू आर साइन फाई कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी प्लस आर साइन थीटा कॉस फाई डी फाई बाय डी टी। अब इसको लिख सकता हूं मैं, dy बाय डी टी को लिख सकता हूं y डॉट, डी थीटा बाय डी टी को थीटा डॉट, और डी फाई बाय डी टी को फाई डॉट, इस तरीके से। सो dy बाय डी टी को लिखा y डॉट इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी को आई कैन राइट एज अ थीटा डॉट प्लस आर साइन थीटा कॉस फाई, और डी फाई बाय डी टी आई कैन राइट एज फाई डॉट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5. नाउ we have found out the velocity in x direction, x dot, velocity in y direction, y dot. Now we can find out the velocity in z direction. तो differentiate with respect to t, equation number 3. अब 3 को भी differentiate करो, ये है equation number 3. So differentiate equation number 3 with respect to t, dz by dt, r constant है, cos theta का derivative minus sin theta d theta by dt. सो ये डिफरेंशिएट, सिमिलरली डिफरेंशिएट। सो देखो तीनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट both differentiate all three equation with respect to t, so you can easily find out the velocity in x direction, velocity in y direction and velocity in z direction. So differentiate equation number 3 similarly with respect to t, तो it will be dz by dt is equal to, माइनस क्यों आया, क्योंकि cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा एंड थीटा का डेरिवेटिव with respect to t d थीटा by dt, so it will be dz by dt is equal to minus r sin थीटा d थीटा by dt. dz by dt को लिख सकता हूं मैं z dot is equal to z dot is equal to minus r sin थीटा d थीटा by dt को लिख सकता हूं थीटा डॉट. दिस इज द इक्वेशन नंबर 6. हो गया, इतना ही था, अब कुछ भी नहीं है इसमें, अब सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स है. वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन निकाल दिया, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन निकाला, वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन निकाला, और तीनों वेलोसिटीज को प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, हमको पूरा टोटल वेलोसिटी मिल जाएगी. ओके, सो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या मिली मुझे, दिस इज द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन. एक्स डॉट मींस वेलोसिटी dx by dt. वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन x डॉट इज इक्वल टू r cos phi cos theta theta phi minus r sin theta sin phi phi dot. This is the velocity in x direction. Velocity in y direction, y dot is equal to r sin phi cos theta theta dot plus r sin theta cos phi phi dot. This is the velocity in y direction. And velocity in z direction is this, z dot is equal to minus r sin theta theta dot. Okay, मिल गया velocity in all three direction. Now we can easily find out the kinetic energy. Kinetic energy क्या होता है, half mv square. Kinetic energy होता है half mv square, और v स्क्वायर मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी इन y डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी इन z डायरेक्शन, तीनों का स्क्वायर. सो अगर टोटल वेलोसिटी निकालना है पार्टिकल इन मूविंग इन 3 डायरेक्शन, सो x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर, ये हो गया वेलोसिटी. और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर. तो v स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, तीनों डायरेक्शन की वेलोसिटी को प्लस कर दो, x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर, वेरी इजी. So kinetic energy of the system or kinetic energy of the particle will be T is equal to half m. V square की जगह क्या लिख रहा हूं, ये वाला.
because velocity in x direction plus velocity in y direction plus velocity in z direction. So half mv square की जगह काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर, और v स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर, बिकॉज द वेलोसिटी क्या है, ये x डायरेक्शन के प्लस कर दिया y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में, तो ये बन गई टोटल वेलोसिटी v स्क्वायर. So v square, in place of v square I can put x dot square plus y dot square plus z dot square. Very easy. So x dot की वैल्यू यहां पे रख दो, y dot की वैल्यू यहां पे रख दो और z dot की वैल्यू यहां पे रख दो. x dot की वैल्यू है मेरे पास, y dot की वैल्यू है मेरे पास और z dot की वैल्यू भी है मेरे पास. So I will put the value of x dot, y dot and z dot here. So after putting the value of x dot की वैल्यू मैंने रखी y dot की और z डॉट की, देखो ऐसा बनेगा इक्वेशन, t इज इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर. एक्स डॉट की वैल्यू क्या है, r cos फाई cos थीटा थीटा डॉट माइनस r sin थीटा sin फाई फाई डॉट स्क्वायर, यह है एक्स डॉट की वैल्यू, प्लस y डॉट की वैल्यू क्या है, r sin फाई cos थीटा थीटा डॉट प्लस r sin थीटा cos फाई फाई डॉट स्क्वायर होल स्क्वायर, यह है y डॉट की वैल्यू, और z डॉट की वैल्यू यह है माइनस r sin थीटा थीटा डॉट माइनस r sin थीटा थीटा डॉट स्क्वायर. तो x डॉट की वैल्यू ये है, y डॉट की वैल्यू ये है और z डॉट की वैल्यू ये है. तीनों वैल्यूज मैंने इसमें पुट किया और हाफ m क्या है, बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है. यह है x डॉट की वैल्यू, यह है y डॉट की वैल्यू और यह है z डॉट की वैल्यू. तीनों वैल्यू मैंने पुट किया तो काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से इक्वेशन बना, और ये इक्वेशन को सॉल्व करना है. दिस इक्वेशन इज क्वाइट लेंथी बट वेरी इजी टू सॉल्व. व्हाई, देखो ये फॉर्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा. यहाँ पे a, ये क्या है, a r cos फाई cos थीटा थीटा डॉट दिस इज a माइनस r sin थीटा sin फाई फाई डॉट दिस इज b, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. वेरी इजी. या इसी तरीके से यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, r sin फाई cos थीटा थीटा डॉट प्लस r sin थीटा cos फाई फाई डॉट का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पे तो डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे एक ही टर्म है. ओके, तो आफ्टर यूजिंग द फॉर्मूला वी विल गेट दिस. देखो कैसे मिलेगा, हाफ एम ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी 2 इंटू ए इंटू बी, 2 ये a है आर स्क्वायर, ओके, b cos फाई cos थीटा sin फाई cos फाई cos थीटा sin फाई थीटा डॉट फाई डॉट. सो 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी, r है r इंटू आर स्क्वायर, a इंटू बी, ओके, ये हो गया a इंटू बी, प्लस b स्क्वायर मतलब r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई और फाई डॉट स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई फाई डॉट स्क्वायर. हो गया, ये तीन टर्म आएंगे, ए स्क्वायर में ये ट्वाइस ए इंटू बी, ट्वाइस ए इंटू बी, ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वाइस ए इंटू बी, ट्वाइस आर स्क्वायर कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई साइन थीटा थीटा डॉट फाई डॉट थीटा डॉट फाई डॉट, इस तरीके से, प्लस बी का स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई फाई डॉट स्क्वायर. ओके, वेरी इजी. तो ये ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो तीन टर्म आएंगे, फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस उसी तरीके से इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करूंगा, ए स्क्वायर मतलब ये वाली टर्म का स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट, प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू आर इंटू आर स्क्वायर साइन फाई कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई थीटा डॉट फाई स्क्वायर. तो 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर, प्लस अब ये आखिरी वाला टर्म माइनस का स्क्वायर प्लस होता है आर स्क्वायर, और इसका टोटल स्क्वायर लिया तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर. वेरी सिंपल. ये लेंदी इक्वेशन है बट फॉर्मूला लगाओगे और सॉल्व करना है तुमको. a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. उसी तरीके से यहां पे ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी
इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और आखिरी में ये वाला टर्म। ओके, अब देखो ये दो टर्म की तरफ ध्यान दो। ओके, ये वाले दो टर्म ट्वाइस आर स्क्वायर कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई थीटा डॉट फाई डॉट, और ये वाली टर्म ट्वाइस आर स्क्वायर साइन फाई कॉस फाई साइन थीटा कॉस फाई थीटा डॉट फाई डॉट। ये दोनों टर्म सिमिलर है, ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये दोनों टर्म सेम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल। ये दोनों टर्म सेम है, इसलिए दोनों टर्म, ये दोनों जो बड़ी बड़े टर्म्स है ट्वाइस आर स्क्वायर कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई और साइन थीटा साइन फाई थीटा डॉट फाई डॉट, सेम है यहाँ पे भी ट्वाइस आर स्क्वायर साइन फाई कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई थीटा डॉट फाई डॉट, ये दोनों सेम टर्म है, कैंसल। पॉजिटिव नेगेटिव, सेम टर्म विथ ऑपोजिट साइन, कैंसल, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। अब देखो ये वाली जो रेड अंडरलाइन की हुई टर्म है और ये रेड अंडरलाइन, इसमें देखो ये दोनों टर्म को मैं पास में लाऊंगा बिकॉज ये दोनों टर्म सिमिलर है। कैसे? सिर्फ क्या डिफरेंस है इसमें, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट, तो ये देखो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा डॉट स्क्वायर, यहाँ पे भी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, ये तीन टर्म कॉमन है यहाँ पे। ओके, तो ये रेड वाले जो अंडरलाइन किए हुए टर्म है इसको पास में लेके आऊंगा, और यहाँ पे ब्लू वाले अंडरलाइन वाले टर्म देखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर, यहाँ पे भी देखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाई डॉट स्क्वायर, यहाँ पे भी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर, ये सिमिलर टर्म है। तो ये रेड वाले अंडरलाइन किए हुए टर्म पास में लाऊंगा, क्लोज में लाऊंगा, और ब्लू वाले अंडरलाइन किए हुए टर्म्स मैं क्लोज लेके आऊंगा, और आखिरी टर्म क्या बचा है, आखिरी टर्म है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर। देखो ये बड़े वाले टर्म कैंसिल हो गए, ये वाले प्लस माइनस है सिमिलर टर्म से कैंसिल हो गए। अब ये रेड वाली टर्म के पास ये रेड वाली टर्म लेके जाऊंगा, ये ब्लू अंडरलाइन वाली टर्म के साथ ये ब्लू वाली टर्म लेके जाऊंगा, और ये टर्म रहेगी आखिरी में एज इट इज। ओके, सो इसका मतलब यहाँ पे कितने टर्म्स बचे इस इक्वेशन में, फर्स्ट ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चार टर्म, ये पांच टर्म बचे। तो ये रेड वाले अंडरलाइन किए वाले टर्म पास में लेके जाऊंगा, और ये ब्लू वाले अंडरलाइन किए हुए टर्म जस्ट आई कीप क्लोजर, एंड लास्ट में ये टर्म को रखूंगा मैं। तो ये आफ्टर इसको मैं ब्रिंग करूंगा इसके पास, और इसके पास मैं इसको लेके जाऊंगा। ओके, और आखिरी में ये टर्म रहेगी। ओके, आफ्टर ब्रिंगिंग दैट टर्म, देखो रेड वाले टर्म्स मैंने पास में लाया, तो ये भी देखो क्या बना, हाफ एम आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, प्लस ये रेड वाले टर्म्स पास में लाया, ये ब्लू अंडरलाइन वाले टर्म्स पास में लाया, प्लस आखिरी में जो टर्म है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जस्ट अ सिंपल मैथमेटिक्स, कुछ भी नहीं है। रेड अंडरलाइन किए हुए टर्म्स पास में लाया, वो बड़ी वाले टर्म्स तो कैंसिल हो गए। ओके, ब्लू अंडरलाइन किए हुए टर्म्स पास में ला गया, एक दूसरे के पास लाया, जस्ट आई ब्रिंग क्लोजर, एंड लास्ट टर्म में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे रेड वाले अंडरलाइन टर्म में देखो क्या कॉमन निकल सकता है, आर स्क्वायर कॉमन है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है, और थीटा डॉट स्क्वायर, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, दो टर्म में आर स्क्वायर कॉमन है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है, थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन है, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा डॉट स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा डॉट स्क्वायर को कॉमन, तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, कॉस स्क्वायर फाई बचा और इधर साइन स्क्वायर फाई बचा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बचा। ओके, प्लस अब ये देखो ये टर्म्स में देखो जो ब्लू अंडरलाइन किए हुए टर्म्स है इसमें क्या क्या कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, और फाई डॉट स्क्वायर कॉमन है। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाई डॉट स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर को कॉमन लिया, बचेगा क्या ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर फाई बचा, और इधर कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई बचा, प्लस आखिरी टर्म एज इट इज जैसे वैसे लिखूंगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर। ओके, जो कॉमन टर्म्स है वो कॉमन ले लूंगा मैंने, ये दोनों टर्म में जो कॉमन है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, यहां पे भी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाई डॉट स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन ले लूंगा, और बचा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। यू नो दैट cos square phi plus sin square phi is 1 and here sin square phi plus cos square phi is also 1। तो sin square और cos square का जो एडिशन होता है वो 1 होता है अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो cos square phi plus sin square phi ये 1 होगा, sin square phi plus cos square phi it is also 1। so cos square phi plus sin square phi 1 होता है, तो ये 1 हो गया, तो ये ब्रैकेट वैनिश हो जाएगा,
ये भी 1 हो गया, तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी क्योंकि इसकी जगह 1 रख सकते, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये ब्रैकेट खत्म हो गया। ये cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 1 होता है, खत्म ब्रैकेट। साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 1 होता है, तो ये वैनिश हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1। अब बचा क्या, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, अब क्या बचा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, ये 1 हो गया, प्लस यहां पे क्या बचा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर, ये बचा, और लास्ट टर्म क्या है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर। ओके, ये 1 हो गया, तो ये वैनिश हो गया, ये 1 हुआ, ये ब्रैकेट वैनिश, ये 1 हुआ, ये ब्रैकेट वैनिश। अब जो टर्म्स बची है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, प्लस यहां पे क्या बचा है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर, प्लस लास्ट टर्म क्या बची है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट। अब देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, देखो जो ग्रीन अंडरलाइन की है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इसमें कॉमन क्या है, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, इसमें भी कॉमन क्या है, आर स्क्वायर थीटा डॉट, तो इन दोनों टर्म्स को पास में लाऊंगा और आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा। ओके, सो आर स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर को कॉमन लूंगा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में से, तो हाफ एम तो बाहर है, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म में से, आर स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर आई विल कीप आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर एज कॉमन, एंड इन द ब्रैकेट वील गेट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में रहेगा, आर स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, प्लस ये वाली टर्म, ये टर्म एज इट इज सेकंड वाली, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव स्क्वायर। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 1 होता है, तो इसकी जगह 1, तो ये ब्रैकेट भी वैनिश हो जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, तो अब बचा क्या मेरे पास, हाफ एम इन द ब्रैकेट आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, प्लस क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज दैट थिंग, तो इसकी जगह 1 आएगा, तो ये वैनिश हो गया ब्रैकेट। ओके, तो अब बचा क्या, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, प्लस ये वाली टर्म बची, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट। अब यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, आर स्क्वायर इज कॉमन, सो आई कैन take r square is common, so after taking r square common, we'll get in the bracket theta dot square plus sin square theta into phi dot square। okay, ये r square common है, इसको बाहर ले लूंगा, तो अब हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या आई, T is equal to half mr square in the bracket theta dot square plus sin square theta phi dot। तो ये है काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड है, मास पे, पोजीशन वेक्टर पे, डी थीटा बाय डी टी, और थीटा और फाई पे डिपेंड है। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। तो वो जो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करके मैंने वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी निकालने के बाद टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, एक्स डॉट की वैल्यू मुझे पता है, y डॉट की वैल्यू मुझे पता है, z डॉट की वैल्यू मुझे पता है, और सारी चीजें उसमें पुट कर दी और सिंपल मैथमेटिक्स का यूज किया, और आइडेंटिटी मुझे याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री में cos स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा का एडिशन 1 होता है, तो इस तरीके से मैं यहां तक पहुंचा, तो ये मिल गया मुझे काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी अगर r थीटा फाई पे डिपेंड है, देखो r थीटा फाई, तो पोटेंशियल एनर्जी भी r थीटा फाई पे डिपेंड होगी, तो ये मिल गई मुझे काइनेटिक एनर्जी इन इक्वेशन नंबर 7। सो सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन r थीटा फाई, और पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखेंगे, v इज नथिंग बट r थीटा फाई, तो पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो डिपेंड अपॉन r थीटा फाई, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी v इन द ब्रैकेट r थीटा फाई। जैसे काइनेटिक एनर्जी r थीटा फाई पे डिपेंड है, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी भी r थीटा फाई पे डिपेंड है। दिस इज v इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज द फंक्शन ऑफ r थीटा फाई, तो पोटेंशियल एनर्जी इज दिस v r थीटा फाई, काइनेटिक एनर्जी इज दिस। अब लैग्रेंजियन फंक्शन देखो, लैग्रेंजियन फंक्शन मींस L इज इक्वल टू टी माइनस वी, टी की वैल्यू मुझे ये पता है, पोटेंशियल एनर्जी, अभी मैं पोटेंशियल एनर्जी को सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, और पोटेंशियल एनर्जी r थीटा फाई पे डिपेंड होती है, तो डायरेक्ट मैं उसको v लिख सकता हूं, v इज डिपेंड ऑन r थीटा फाई, तो पोटेंशियल एनर्जी है v r थीटा फाई, काइनेटिक एनर्जी है ये, तो लैग्रेंजियन फंक्शन निकाल सकता हूं, L इज इक्वल टू टी माइनस वी, टी की वैल्यू रख दिया मैंने हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर, माइनस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रख दिया, माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ r थीटा फाई, सो दिस विल बी द लैग्रेंजियन फंक्शन फॉर द पार्टिकल मूविंग ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर।
सो पोटेंशियल एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है आर थीटा फाइव पे। जैसे जैसे तुम्हारा इक्वेशन होगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी वैरी करेगी, आर थीटा फाइव वैरी करेगा। तो डायरेक्ट मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिखा एज द फंक्शन ऑफ आर थीटा फाइव। ये है काइनेटिक एनर्जी निकालना है तुमको, बस पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट फंक्शन होगा आर थीटा फाइव का, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द लैग्रेंजियन फंक्शन। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 8, दैट इज द रिक्वायर्ड लैग्रेंजियन फंक्शन फॉर द पार्टिकल मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि फाइंड आउट द लैग्रेंजियन फंक्शन फॉर पार्टिकल मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस एल, और यहां तक तुमको डेरिवेशन करना है इक्वेशन नंबर 8 तक। काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आर थीटा फाइव पे डिपेंड होती है, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी निकालो और उसमें से v एज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा फाइव को माइनस करो तो लैग्रेंजियन फंक्शन मिलेगा। तो इस तरीके से ये सिंपल डेरिवेशन है, सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स है, ये याद रखना है। और स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स and Cartesian, you have to remember the relation between the spherical polar coordinates and Cartesian coordinates. If you know the relation between x r theta phi, y r theta phi and z r theta phi के बीच में relation पता है, then you can easily find out the velocity। और वेलोसिटी क्या होता है, x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। वेलोसिटी पता है तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर की जगह लिख दो x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। x डॉट की वैल्यू पता है, y डॉट की वैल्यू पता है, z डॉट की वैल्यू पता है। तो वेरी सिंपल, यू कैन फाइंड आउट दिस इज द लैग्रेंजी रिक्वायर्ड लैग्रेंजियन फंक्शन। सिंपल मैथमेटिक्स है, बस तुमको ये चीज याद रखनी है, ये 3 इक्वेशन you will have to remember these 3 equation, because these 3 equation determines the position of the particle in x direction, position of the particle in y direction and position of the particle in z direction, and this is the relation between the Cartesian coordinate and spherical polar coordinates you have to remember. So the trick to remember this equation, just you have to remember r sin cos, r sin and r cos, and theta phi you have to put accordingly. X is equal to r sin theta sin cos phi, y is equal to r sin theta sin phi, and z is equal to r cos phi. This is the position in x direction, y direction and z direction. Then you have to calculate the velocity. So differentiate equation number 1 with respect to t, differentiate equation number 2 with respect to t, and differentiate equation number 3 with respect to t. So you will get x dot, y dot and z dot. After getting x dot, y dot and z dot, just put in the kinetic energy equation, and this is the kinetic energy half m x dot square, y dot square, z dot. Just x dot, y dot और z dot की वैल्यू रख दो, क्योंकि वेलोसिटी है ये। v square is nothing but x dot square plus y dot square plus z dot square. Just put the value of x dot, y dot and z dot here. Then you will perform the simple basic mathematics, and you have to remember some formula. A minus b whole square means a square minus twice ab plus b square. A plus b whole square, that is a square plus b square plus twice ab plus b square. And you have to remember some trigonometry. Cos square theta plus sin square theta is equal to 1. You have to remember this simple identity of trigonometry. Then you can easily reach to the kinetic energy of the system of the particle, half mr square theta dot square plus sin square theta into phi dot square. And after getting the kinetic energy, you don't need to find out the potential energy, because you know that in spherical polar coordinate the potential energy is the function of r theta phi. Just subtract t minus v, you will get the Lagrangian of the function. Very easy derivation is this. Okay, many times in university examination this question is frequently asked in the university examination. Find out the Lagrangian function for the particles moving on the surface of sphere. तो इस तरीके से हमने एक सिंपल डेरिवेशन देखा, सिंपल बेसिक कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है इसमें, डिफरेंशिएशन का, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है सिंपल। इस पे कोई क्वेश्चन है इस डेरिवेशन पे तो पूछ सकते हो। वेरी इजी डेरिवेशन इज दिस। ओके,